in triangle ABC and triangle DEF, AB is parallel to D, AB is equal to D. This is very important point. AB is parallel to D, AB is equal to D. BC is equal to EF and BC is parallel to EF. Then vertices A, B and C are joined to D, here E and F respectively. What you have to show is quadrilateral ABED is a parallelogram. Quadrilateral ABED is a parallelogram. ABED parallelogram है, ये बताना है. देखिए, in the first sentence itself the clue is given to us. फर्स्ट पॉइंट क्या प्रूव करना है? क्वाड्रिलैटरल ABED इज ए पैरेललोग्राम. देखिए, इन क्वाड्रिलैटरल ABED ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि वन साइड इज पैरेलल टू दिस साइड and they are equal to each other. So quadrilateral when which opposite sides are parallel and equal, it's a parallelogram. So the first proof is over. So how I should prove is in quadrilateral ABED, proof is very simple. In quadrilateral ABED, in quadrilateral ABED, AB is parallel to AB is parallel to D, AB is parallel to D and AB is equal to D. ये कहाँ से आया? ये गिवन है. ये क्या है? गिवन है. AB D को पैरेलल है, AB D के इक्वल है, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, देयरफॉर ABED इज अ पैरेललोग्राम. इंप्लाइज opposite sides are of course of a quadrilateral, opposite sides of quadrilateral ABED are parallel and equal, and it happens only if it is a parallelogram. So implies ABED is a parallelogram. First point is proved. ABED is a parallelogram. It is a parallelogram. Now children, remember one thing. This side is parallel to this side. This side is parallel to this side. This side is equal to each other. So ABED is a parallelogram. Now one more thing that you should understand is, if ABED is a parallelogram, then I can say that AD will be parallel to BE and AD will be equal to BE, because opposite sides of a parallelogram are equal and parallel. So if ABED is a parallelogram, one important result that we should always mark is AD is equal to BE, AD is equal to BE, AD is parallel to BE, and AD parallel to BE. This I will call it as my first equation 1. As and when required I will use it. जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इसका इस्तेमाल करूँगा. अगर ABED इज अ पैरेललोग्राम है तो इम्प्लाइज यानी इसका परिणाम क्या होगा? ये इसके बराबर होगा. आप सोच रहे होंगे सर आप क्यों ये सब कह रहे हो? आई विल कम टू द पॉइंट. मैं पॉइंट की तरफ आऊँगा. अब सेकेंड पॉइंट मुझे क्या बताना है कि क्वाड्रिलैटरल BEFC इज अ पैरेललोग्राम. BEFC ये पैरेललोग्राम है. तो आप यहाँ पर सेकेंड हिंट आप देखिए कि BC इज इक्वल टू EF. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन्होंने दिया है. BC EF के बराबर है. तो बच्चों अगर BC EF के बराबर है और BC EF को पैरेलल है तो फिर से वही लॉजिक होगा कि पैरेललोग्राम BEFC के अंदर opposite sides are parallel and equal, and if that is the case then it has to be a parallelogram. So इसको अगर प्रूव करना है सेकंड पॉइंट को, तो उसी बात को मैं लूँगा कि इन क्वाड्रिलैटरल BEFC ये दिया है. क्या दिया है? BC इज इक्वल टू EF, BC is equal to EF and BC parallel to EF.
ये गिवन है, implies opposite sides of quadrilateral BEFC are equal and parallel. And if that is the case, children, then I need not tell you BEFC is a parallelogram. So what I have written here is BEFC is a parallelogram. ये मेरा सेकेंड पॉइंट मैंने प्रूव कर दिया कि मैंने क्वाड्रिलैटरल बताया आपको जिसके अंदर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो ये क्या हो गया, BECF इज अ पैरेललोग्राम। अब आप थोड़ा देखिए कि अगर BEFC पैरेललोग्राम हो गया बच्चों, तो ये वाला साइड इसको पैरेलल है और ये वाला साइड इसको इक्वल है, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि साइड CF साइड जो है वो BE साइड के बराबर होगा। implies B is equal to B, CF is equal to B and CF parallel to B। ये मेरा पॉइंट नंबर 2 है, ये सेकंड पॉइंट है मेरा। तो इस सेकंड पॉइंट के मुताबिक मुझे क्या मिला कि यह इसको पैरेलल है, यह इसको इक्वल है। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ आएंगे कि मुझे प्रूव करना है कि AD पैरेलल टू CF है और AD इक्वल टू CF है, ये मुझे प्रूव करना है। देखिए ऑलरेडी आप ये देख चुके हैं कि AD पैरेलल टू CF यू हैव टू प्रूव एंड व्हाट इज इट, AD इक्वल टू CF मुझे प्रूव करना है। तो बहुत सिंपली आप देखो, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखोगे तो आपको थर्ड प्रूफ मिल जाएगा। कैसे, आप देखो कि AD BE को पैरेलल है, AD BE को पैरेलल है और CF BE को पैरेलल है। तो अगर AD BE को पैरेलल है और CF भी BE को पैरेलल है और AD BE के बराबर है, CF भी BE के बराबर है, यानी द सेम लाइन इज पैरेलल एंड इक्वल टू BE, देयरफॉर CF विल बी इक्वल टू BE एंड पैरेलल टू BE। यानी क्या हो गया हमको, व्हाट वी गॉट इज AD इज पैरेलल टू CF and AD is equal to CF. What I have proved here is, see, this is parallel to this and equal to this. This is also parallel to this and equal to this. So both are equal and parallel to this. This is also parallel and equal to this. This is also parallel and equal to this. So they have to be parallel and equal to this. So that is what I mean by AD is parallel to CF. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए पॉइंट में क्या बता रहा हूँ कि AD बाय, दिस इज बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से मैं बता रहा हूँ कि AD is parallel to B and AD equal to B by equation 1। ये इसको पैरेलल और इक्वल है, ये भी इसको पैरेलल है और इक्वल है, यानी दोनों लाइन एक ही लाइन को पैरेलल और इक्वल है, तो वो एक दूसरे को पैरेलल और इक्वल हो जाएंगे। तो मैं क्या कहूँगा कि CF इज पैरेलल टू B and CF is equal to B by equation 2। तो implies, अगर ऐसी बात है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये लाइन भी इसको पैरेलल और इक्वल है, ये लाइन भी इसको पैरेलल और इक्वल है। implies मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि AD is parallel to CF and AD equal to CF। और ये ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों पैरेलल और इक्वल हो गए तो ACDF एक पैरेललोग्राम बन रहा है। तो इससे पहले एक सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा कि ACDF इज अ पैरेललोग्राम, वो बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए वही बात यहाँ पर आ रही है कि क्वाड्रिलैटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। तो इसी बात को लेके हम आगे चल सकते हैं कि भाई एक ही लाइन को अगर पैरेलल है
तो डायरेक्टली इसी प्रूफ को हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इम्प्लाइज ACDF इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि उसके अंदर अपोजिट साइड्स पैरेलल है और इक्वल है। और अगर किसी क्वाड्रिलैटरल के अंदर ACDF क्वाड्रिलैटरल के अंदर ACFD या ACDF क्वाड्रिलैटरल के अंदर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो रहे हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल हो रहे हैं, तो ये ACFD क्वाड्रिलैटरल क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो आप ऐसे एक सेंटेंस आप यहाँ लिख सकते हो कि इन क्वाड्रिलैटरल ACDF अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये क्यों ऐसा हो गया? बिकॉज इफ यू वांट आई कैन राइट इट हियर, बिकॉज ACDF is a quadrilateral, ACDF is a quadrilateral, ACDF is a quadrilateral where opposite sides are parallel and equal, are parallel and equal, parallel and equal। और कौन सा है वो अपोजिट साइड? वो कौन सा है अपोजिट साइड? थोड़ा देख लीजिए कौन सा अपोजिट साइड है। AD पैरेलल टू CF हो रहा है और AD इक्वल टू CF हो रहा है। दैट इज कौन सा है वो? AD पैरेलल टू CF हो रहा है और AD इक्वल टू CF हो रहा है। तो ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 3। अब आएगा पॉइंट नंबर 4 कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सिंपल सी बात है बच्चों, देखिए AB DE के बराबर है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABED दे आर इक्वल, तो ये AB वाला साइड DE के बराबर है। अब नेक्स्ट देखो, ये BC वाला साइड EF के बराबर है, क्योंकि अगेन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम BCEF है। नेक्स्ट है AC वाला साइड DE के DF के बराबर है, क्योंकि अगेन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ACFD, यानी सभी ट्रायंगल्स के तीनों साइड पैरेललोग्राम्स के अपोजिट साइड्स हो रहे हैं। तो एक ट्रायंगल के 3 साइड दूसरे ट्रायंगल के 3 साइड के बराबर होगा, तो बाय कॉन्ग्रुएंसी रूल, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, दे विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो सिंपल सी बात है कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF AB इक्वल टू DE होगा, AB इक्वल टू DE होगा। इसका रीज़न है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABED। तो एक साइड इसके बराबर हो गया, साइड BC साइड EF के बराबर है, साइड BC साइड EF के बराबर है। रीज़न है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम BEFC सेम है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम BEFC। नेक्स्ट तीसरा साइड ACDF के बराबर है, ACDF के बराबर है। ये क्या हो गया? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ACDF, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ACDF, यानी व्हाट वी हैव प्रूव्ड इज फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 हम ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, और रूल जो यूज़ किया वो है SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो स्टूडेंट्स, प्रूफ इज़ वेरी सिंपल। पहला ही हिंट आपको पहला आंसर दे रहा है, दूसरा हिंट आपको दूसरा आंसर दे रहा है, और ये दोनों से आपको तीसरा आंसर मिलता है, और उससे फिर आपको चौथा आंसर मिलता है, और इन सभी से आपको 5वां आंसर मिलता है। तो इस तरह से आप सीरियली चले जाओगे तो आप लास्ट तक आप बड़े आसानी से सारे पैरेललोग्राम्स के सीरीज़ हैं।